गाइस, उम्मीद है आपको मेरे 2 वीडियोस पसंद आए होंगे जो मैंने अभी पिछले हफ्ते अपलोड किया था. From now onwards, I'm planning to bring something which is suitable for everyone. लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोस. आज मैं कुछ नया लेकर आया हूं आप सबके लिए. इंग्लिश. कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश बोलने में आफ्टर ऑल प्रॉब्लम कहां पे आती है? वेयर डू वी लैक वंस वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? सबसे पहली चीज होती है वो कॉन्फिडेंस. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है. क्यों? क्योंकि हमें बेसिक्स ऑफ ग्रामर वो पता नहीं होता है. दोस्तों, यू कैन बी अ गुड स्पीकर. आप कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. एंड कॉन्वर्सेशन में जनरली वी अवॉइड द बेसिक्स ऑफ ग्रामर. बट इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यू नीड टू लर्न द बेसिक्स. और ये इंग्लिश आपको पूरी लाइफ काम आने वाली है. दिस वीडियो सुटेबल नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द पीपल हु आर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस, जॉब्स, हाउसवाइफ्स, दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर वर्क. सबके लिए काम आना है. तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा. और इसमें आज हम बात करेंगे जो बेसिक्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं और उनका इंप्लीकेशन अपने रियल लाइफ में कैसे करना है. एंड इन इंग्लिश, दैट प्रोवाइड फिश टू योर चाइल्ड, you will feed him for a day. Teach him how to fish, you will feed him for lifetime. Total 12 tenses हैं. Out of 12 tenses, trust me, the most difficult tense is simple present tense. सबसे ज्यादा errors simple present tense में होता है. I'll just tell you the ways to have a mastery over simple present tense. और पूरी life, whenever you will use simple present, you will never ever commit any error. कोई mistake नहीं होगा यहाँ. Simple present tense में there are 3 different types of sentences. पहला affirmative, second interrogative, third one negative. In this video, I'm going to talk about affirmative sentences. इसी का जो next video जब मैं upload करूँगा उसमें I'll be talking about interrogative and negative. How to frame interrogative sentences in simple present tense. तो tense start करने से पहले I would like to share 2 things with you. First, the information about the subject. Second, the information about the verb. Tense को समझने से पहले it's very important for you to understand कि subjects को कैसे हमें learn करना है. What kind of subjects do you have? What kind of verbs do we have? क्योंकि subject और verb इन दोनों का जो combination है that is known as tense. So let's try and see what do you have in the subject and verb. So let's talk about the subject. अब तक आपने ये सीखा था कि there are 3 types of subjects: first person, second person and third person. और फिर तीनों persons are singular and plural. So we have 6 different types of subjects. चलिए इसको और simplify कर लेते हैं. Now I have divided subjects in just 2 categories: singular and plural. Singular words comes from single, that means 1 in number. Plural, more than 1 in number. For example, if I say Ronak is watching a movie, Ronak is a singular subject. But the moment we change it, Ronak and Ramit, then they too become a plural subject. That means in present continuous tense, plural will take or as a helping verb. तो यही आपको समझना है. 2 types of subjects are there. One is singular, one is plural. Singular is just 1 in number, plural more than 1 in number. Now there are 2 more subjects which may create confusion for you. For example, you. So whenever we use you as a subject, जब भी हम you को as a subject हम use करते हैं, तो we are not sure कि you जिससे आप बात कर रहे हैं वो अकेला है या एक से ज्यादा है. तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर किया ग्रामर ने और ये माना कि भाई you will always be treated as a plural subject.
अब बचता है एक सब्जेक्ट जो है आई। नाउ आई यानी कि मैं, वन इन नंबर। I is an exception to this rule. I remains an exception in all the four tenses of present tense. Although I is a singular subject, but it is treated as a plural in all the four sentences of present tense. इसको ध्यान रखना, इसको याद रखना। That whenever we use I, for example, she goes to the school. As per rule, अगर she singular है उसके साथ verb के फर्स्ट फॉर्म में you have to add s or es. तो we say she goes to the school. But when we use I है तो singular, but we never use I goes to the school. What do you say? I go to the school. तो singular होने के बावजूद I singular verb नहीं ले रहा है because it is an exception. ये एक अपवाद है इस रूल का, तो इसको याद रखना है। और ब्रीफ रिकैप, singular is a subject which is one in number. Plural is a subject which is more than one in number. You is always treated as a plural subject. I, although is a singular subject, but it is treated as a plural subject in all the four tenses of present tense. Now I'll talk about the verbs. चलिए बात करते हैं verbs की। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि टेंस में हमें जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की और वर्ब्स। सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज टेंस। सब्जेक्ट की बात मैंने की आपको, तीनों डिफरेंट, दो अलग तरह के सब्जेक्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ब्स। वर्ब्स के तीन फॉर्म्स होते हैं, वैसे चार फॉर्म होते हैं बट हमें यहाँ पर तीन फॉर्म्स की जरूरत है। फोर्थ फॉर्म मैं आपको बता दूंगा लेकिन मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे। सबसे पहला प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, और एक चौथा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन उसकी जरूरत हमें है नहीं टेंस में। तो विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू दीज थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब देखिए जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है, उसको लिखेंगे V1, V2, V3। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जो भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगा वहां पे ये V1, V2, V3 आना है हर टेंस में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि V1 जो है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V2 जो होगा वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और V3 होगा वो पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो तीन फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3। अब इसको और भी इलैबोरेट अगर मैं करना चाहूँ तो आपको बता दे है क्या, इसको समझो। थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने पहले भी काफी पढ़ा होगा, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। तो अभी डिटेल्स में वर्क करने जा रहे हैं, हमारे काम की चीज सिर्फ V1, V2 और V3 है यहाँ पे। तो गो इज द प्रेजेंट फॉर्म, एज इट इज जो फॉर्म है आपका गो। पास्ट में उसको वेंट लिखेंगे हम, और पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वहां पे गॉन। तो सब्जेक्ट की बात हमने किया, वर्ब की बात की यहाँ पे। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये टेंस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे ज्यादा मुश्किल है ये टेंस, सबसे ज्यादा एरर्स होते हैं इस टेंस में। इस टेंस को ठीक से समझ लो, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इससे पहले कि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल सिंपल प्रेजेंट के यूज कहां कहां है, कहां कहां हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। ये टेंस अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है हमारी लाइफ में, बिकॉज हमारे डे टू डे जितनी भी हैबिचुअल ट्रिक्स होते हैं हमारे, जो हमारे हैबिट से रिलेटेड होते हैं, थिंग्स दैट वी जनरली डू इन आवर डे टू डे लाइफ, जो काम आप अक्सर करते हैं अपने दैनिक जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, उसके लिए इस टेंस का सबसे ज्यादा जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द स्कूल एवरी डे। नाउ ये जो टेंस की बात जब हम करें तो टेंस कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन। जब भी कोई आप सेंटेंस बनाते हैं एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन, इफ यू गेट द आंसर ऑफ व्हेन दैट मींस कि ये डेफिनेट है। और इस टेंस का नाम क्या है देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दैट मींस टाइम ऑफ एक्शन है वो डिफाइंड नहीं होता। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का एक्सपेंशन काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा।
अभी प्रेजेंट है, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डेकेड, दिस सेंचुरी, द एंटायर एज। अब देख रहे हैं कितना एक्सपेंशन हो रहा है प्रेजेंट का। तो सबसे ज्यादा यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारे अपनी लाइफ में जब भी हम बात करते हैं। इफ यू टॉक टू समवन यू जनरली टॉक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें 3 मैंने आपको बताया था। पहला इंपरेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि हम अभी यहां पे करने वाले हैं। इसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल आती है यहां कि भाई क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर WH बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे। WH ग्रुप के जो 7 W's and 1 H वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, होम, हाउ एंड एक और है। टोटल जितने भी WH ग्रुप के वर्ड्स होते हैं इनसे हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं इंट्रोगेटिव, और फिर हम बात करेंगे नेगेटिव कैसे बनाएं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आते हैं वापस आते हैं इसमें कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना कि यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब आपने डिसाइड कर लिया कि अपने डे टू डे लाइफ के बारे में आपको बताना है, तो वहां पे आता है स्ट्रक्चर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैंने बता दिया आपको, 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। 2 कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। या तो आप सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट के साथ, या तो आप V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो प्रेजेंट फॉर्म था, या फिर सब्जेक्ट के साथ आपको V1 के साथ S और ES लगाना है। ऑब्जेक्ट तो नॉर्मल उसमें लगना है। अब सबसे बड़ी मुसीबत है इस टेंस में, खास करके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि किसके साथ SES लगाना है, किसके साथ, किस वर्ब के साथ SES नहीं लगाना है। इसका सिंपल सा रूल याद रखना। जैसे ही आपका सब्जेक्ट मोर देन 1 हो जाए, दैट मीन्स प्लूरल, वी नेवर यूज S or ES with the first form of the verb with a plural subject। इसको इस तरह समझिए, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब में S, ES ऐड नहीं करना है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट आपका एक हो नंबर में, 1 ही नंबर, तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, दैट इज V1 जो मैंने बताया था कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ S या ES ऐड करना है आपको। एक बार फिर से समझा दूं मैं, जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं यानी कि 1 ही नंबर, उसके साथ मेन वर्ब में S, ES ऐड करना है। जैसे सब्जेक्ट आपका मोर देन 1 हो जाए यानी कि प्लूरल, तो S, ES हटा देना है। एज सिंपल एज दैट। यू को हमने हमेशा क्या माना था, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू के साथ SES लगना या नहीं लगना है, बिल्कुल नहीं लगना है। यू के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। और एक एक्सेप्शन की बात मैंने की थी आपसे, आई की। आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन इट इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। आई जब भी आप यूज करते हैं, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसमें कोई SES आप नहीं लगाएंगे। 3 एग्जांपल्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सबसे पहले देखते हैं शी। शी क्या है, सब्जेक्ट। नंबर कितना है, 1। तो अगर 1 है तो V1 में क्या लगाना है, S, और S या ES जो भी सूटेबल वहां। यहां पर मेन वर्ब क्या है, गो, क्योंकि लास्ट में O है, इसलिए इसके साथ हमने क्या ऐड किया यहां पे, ES। सेंटेंस में शी गोज टू द स्कूल एवरी डे। वी सब्जेक्ट को देखो, वी मीन्स मोर देन 1, एक से ज्यादा, हम लोग, दैट इज वी। एक से ज्यादा जैसे ही हुआ, उसके साथ मेन वर्ब है प्ले, और रूल ये कहता है कि इस प्ले में कोई भी S, ES ऐड नहीं करना, बिकॉज दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तीसरा एग्जांपल देखो, आई है तो सिंगुलर, 1 ही नंबर, लेकिन आई के साथ हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में S, ES ऐड नहीं करेंगे। तो यहां क्या सेंटेंस बना, आई वॉच हॉरर मूवीज। आई वॉच, आई के वॉच के साथ कोई भी SES नहीं होगा। तो गाइस, ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वर्ब की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी गूगल पे। कोई भी आप 25 वर्ब्स आप ले लो जो जनरल डे टू डे लाइफ में आप जिसको यूज करते हैं। सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स ऑन योर ओन एंड स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस विद कॉन्फिडेंस। और जो सेंटेंस आप फ्रेम करते हैं, स्टार्ट स्पीकिंग देम। तो इन शॉर्ट, जो भी आपको बोलना हो, एक बार पहले इसको फ्रेम कर लो,
देख लो ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। ट्रस्ट मी, ये सिंपल प्रेजेंट का वीडियो, इसको अगर आपने ठीक से देखा होगा, बीच में कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो आप दोबारा इसको फिर से देख लें। और ये आपको लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आपको सॉल्व करेगा। और अगला वीडियो जो कि 2 दिन बाद मैं फिर से अपलोड करूंगा, और उसको जरूर देखना, बिकॉज उसमें आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, हाउ टू फ्रेम इंटरप्रेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो मैं आपको बताऊंगा और उसको आप लोग ध्यान से देखना। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट मोर वीडियोज टू कम। थैंक यू।